Hello everyone, I'm Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. As you know that we are doing this CUET PG English Literature complete preparation only on our YouTube channel, that is Education Pill. The classes are uploaded on Monday, Wednesday and Friday at 7 p.m. This is a complete free crash course and all the classes will be available on our YouTube channel only. We have two telegram groups. The first group is for our English literature students जहाँ पर आपको free study material, previous year questions and जो भी other mock test series हैं वो provide की जाती हैं. And the second telegram group that is named Education Pill is for all of you जहाँ पर आपको जितनी भी क्लास अपडेट्स हैं कोई शेड्यूल में चेंज है अगर तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. If you have any doubt or query regarding your exam, so you can simply make a call on this given number on your screen. बिना अब वक्त जाया करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं with the thought the we aim above the mark to hit the mark by Ralph Waldo Emerson. As you know कि हम अपनी हर क्लास में डेली MCQs भी करते हैं. We do 5 MCQs in our every lecture जिनके आंसर आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले मैंने जो पिछले क्लास में क्वेश्चंस दिए थे हम उनके आंसर्स देखेंगे and then we will move on today's lectures, that is Victorian literature, the age of Victoria or the Victorian period. The first question says, which work is often regarded as a major representative of romantic poetry? मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कुछ लोगों ने इसका आंसर प्राइड एंड प्रेजुडिस दिया था. तो हाँ, ये जो वर्क है ये रोमांटिक एज को बिलोंग करता है बट इट इज नॉट अ वर्क ऑफ पोएट्री. तो ये राइट आंसर नहीं होगा. The right answer here is lines composed a few miles above Tintern Abbey. आपको इस वर्ड ये जो वर्ड है पोएट्री इसको भी ध्यान में रखना है. Then comes our second question which says which romantic poet is known for his association with the lake poets and his introspective nature inspired poetry? Is it Lord Byron, John Keats, William Blake, or is it D. William Wordsworth? So here the right answer is option number D, William Wordsworth. Question number third says which romantic author wrote the poem To a Skylark and is celebrated for his lyrical expression of beauty and idealism? So To a Skylark is written by P.B. Shelley. Option number A is the right answer here. Then comes question number 4 which says which romantic author wrote the novel Ivanhoe, a historical work set in medieval England exploring the themes of chivalry and heroism? So this is option number B, Sir Walter Scott. While teaching Sir Walter Scott, I taught you that he has been regarded as a person who has written extensively on history, on philosophy. So जब भी historical work आता है, especially from this time period, and you don't know the exact answer, so you can go with Sir Walter Scott. Question number 5 says, who wrote the influential essay A Defense of Poetry, advocating the significance of poetry and its ability to inspire imagination and moral growth? So it is again option number B, that is P.B. Shelley. Now we will be starting Victorian age. इसके पहले के लेक्चर्स में हमने रोमांटिक एज तक कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम देखने जा रहे हैं विक्टोरियन एज को. So the first question that must be arising in your heads is why is it known as Victorian age? The answer is the Victorian age is known as Victorian age because it corresponds with the reign of Queen Victoria, that is from 1837 to 1901. इस टाइम पीरियड पर रैपिड चेंजेस देखने को मिल रहे थे. अर्बनाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था एंड दैट टू वेरी मैसिवली. बहुत बड़े बड़े नंबर्स में फैक्ट्रीज खोली जा रही थी, इंडस्ट्रीज खोली जा रही थी. इसी वजह से इस टाइम पीरियड पर हमको सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं. इस टाइम पीरियड के वर्क्स जो हैं वो ना सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंस्पायर्ड हैं बल्कि सोशल एंड मॉरल इश्यूज पर भी बात करते हैं.
आई एम श्योर अगर आप इस टाइम पीरियड के राइटर्स को याद करेंगे तो आपको उनकी थीम्स में वो देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर चार्ल्स डिकेंस को देखें तो उन्होंने काफी सोशल एंड मॉरल इश्यूज पर बात की है अपने वर्क्स में। Novels in particular explored the themes of morality, virtue, and the consequences of societal norms. Then gender roles and women issues. अब इस टाइम पीरियड तक आते आते लोग काफी ओपन अप हो गए थे regarding the roles of men and women. Girls, especially female writers, started asking the norms of the society and they also challenged it through their works. तो ये जो एक डिबेट है ये एक तरीके से शुरू हो चुकी थी on gender roles and women rights. Apart from industrialization, social moral themes and women issues, हमें इस टाइम पीरियड पर गॉथिक एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर आप ब्रॉन्टे सिस्टर्स को याद करें, राइट, चार्लोट ब्रॉन्ट, एमिली ब्रॉन्ट, एनी ब्रॉन्ट, तो उनके वर्क्स में आपको ये थीम्स देखने को मिलेंगी। देन रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिक। चार्ल्स डिकेंस के वर्क आई गेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। द टेल्स द हार्श रियलिटीज ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। अब क्योंकि इस टाइम पीरियड पर लोग एक्सटेंसिवली नॉवेल लिख रहे थे और अलग अलग थीम्स को भी एक्सप्लोर किया जा रहा था, that is why novel gained prominence as a dominant literary form in Victorian era. Authors such as Charles Dickens, Charlotte Bronte, and George Eliot produced notable works exploring diverse aspects of Victorian life. अब जबकि हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इस टाइम पीरियड के फीचर्स को देख लिया है, अब हम देखेंगे इस टाइम पीरियड के फेमस पोएट्स, एसेइस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। द फर्स्ट वन इज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये एक प्रोमिनेंट विक्टोरियन पोएट थे एंड ही आल्सो सर्व्ड एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। इनके अगर हम मेन वर्क्स की बात करें, सो द फर्स्ट वन इज The Charge of the Light Brigade. It was a poem that commemorated the bravery of the British soldiers in the Crimean War. Then comes In Memoriam. In Memoriam इनका one of the most important work है। Why? Because अक्सर पूछा जाता है कि ये किसको डेडिकेटेड था। So the work, this elegy was dedicated to his close friend Sir अर्थर हेनरी हेलम। हिज फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम को इन्होंने ये डेडिकेट की थी क्योंकि ये एक एलिजी है। सो इट एक्सप्लोर्ड द थीम्स ऑफ ग्रीफ, डाउट एंड फेथ। देन कम्स ईडल्स ऑफ द किंग। ईडल्स ऑफ द किंग इज अ सीरीज ऑफ नैरेटिव पोएम्स which retells the Arthurian legends. इसके बाद आता है इनका again very important work, that is Ulysses. Ulysses is a work of dramatic monologue where Tennyson presents the mythic Greek hero Ulysses reflecting on his life and his adventures. Then we have Lady of Shalott, a narrative poem, Tears, Idle Tears, a reflective poem, and The Brook, which is a nature poem. अगर इनके सबसे important works की मैं आपसे बात करूं, so the first one is In Memoriam, Ulysses, and we have Lotus Eaters. It is a poem by Tennyson which was published in 1832. He also served as the Poet Laureate of England from 1850 until his death. 1850 में अच्छा ऐसा क्या हुआ था कि टेनिसन को ये जो उपाधि है ये दी गई थी? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 1850 को एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर की डेथ हुई थी। कौन थे वो राइटर? चलो हिंट भी दे देती हूँ, उनका नाम स्टार्ट होता है डब्ल्यू से। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अब है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जिन्हें हम एक सिनोनिम भी कह सकते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ही इज दैट फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। 1812 to 1889 he was a Victorian poet who is known for his dramatic monologues and exploration of psychological complexity. अब ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता क्या है? एक व्यक्ति अपने जो विचार हैं वो बड़बड़ा रहा होता है, बोल रहा होता है, जो कि ऑडियंस जो बैठी है वो भले ही सुन सकती है, बट फॉर हिम ही इज ऑल अलोन।
और जब कोई व्यक्ति अपने अंदर के छुपे विचारों को खुद से बताता है, उनके बारे में बात करता है, तो हम समझ सकते हैं कि वो अपने जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से उनसे जूझ रहा होगा, उनको बता रहा होगा। सो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में हमको पता चलता है when we go through the dramatic monologues written by Robert Browning. Then अगर हम बात करें इनके अदर वर्क्स की, तो सबसे पहले है पॉलिन, इनका पहला पब्लिश्ड वर्क था, ये एक नैरेटिव पोएम थी। देन पार्सिलस, अगेन अ ड्रामेटिक पोएम that explored the life of the Renaissance alchemist Paracelsus. Then we have Sordello, ड्रामेटिक लिरिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, क्योंकि इसमें था माई लास्ट डचेस, दिस कलेक्शन includes माई लास्ट डचेस, a dramatic monologue which is known for its psychological depth. So my last डचेस जो है वो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। Then Men and Women, a collection है that includes some of his best known works such as Andrea del Sarto and Fra Lippi. Last but not the least, we have The Ring and the Book. It is Browning's longest poem. It is a verse novel that tells a murder trial from multiple perspectives. अब चलिए इनके वर्क्स को याद करने की कोशिश करते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के तीन फ्रेंड्स थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग के दो फ्रेंड्स थे, पार्सिलस एंड सॉर्डेलो। पार्सिलस स्टार्ट्स विद पी, है ना, इनकी वाइफ थी पॉलिन। सो अगेन स्टार्ट्स विद पी। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक दोस्त था पार्सिलस जिसकी वाइफ थी पॉलिन, दूसरा दोस्त था सॉर्डेलो जो कि ड्रामेटिक लिरिक्स लिखा करता था। अब जो पार्सिलस है, सॉर्डेलो है और पॉलिन है, ये सभी लोग क्या थे, मैन एंड वुमेन। सो मैन एंड वुमेन, एंड ये सभी लोग मिलकर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम रहता है द रिंग एंड द बुक। By this you can just remember that he wrote some 5-6 very important works from your exam point of view. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की तरफ। शी वॉज अ रिनोन्ड विक्टोरियन पोएट। अगर बात करें हम इनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क की, सो आई हैव इंक्लूडेड ओनली वन मेजर वर्क। इन्होंने बहुत माइनर वर्क्स भी लिखे, बट वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपका सिलेबस भी कहता है मेजर ऑथर्स मेजर वर्क्स। So Aurora Leigh, written by Elizabeth Barrett Browning, published in 1856. It is a novel in verse that reflects her feminist views which explored the challenges faced by women in the Victorian era. जैसे कि मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी बताया था कि इस टाइम पीरियड के राइटर्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ना सिर्फ उनके व्यू पॉइंट बल्कि विक्टोरियन सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति, गरीबों की स्थिति जो चल रही थी, उसके बारे में हमको पता चलता है। इसके बाद आते हैं दांते गैब्रियल रोसेटी। ये एक प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट पेंटर थे एंड इन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। अगर हम बात करें इनके मोस्ट नोटेबल वर्क्स की, तो सबसे पहले है द ब्लेस्ड डेमोजिल। It was a poem which depicted a vision of heaven. Then the house of life. It was a sequence of sonnets and sonnets अक्सर love life art पर लिखे जाते थे। तो from this you can remember the theme as well. Then we have Christina Rossetti. Christina Rossetti DG Rossetti की sister थी and she was also a prominent poet. अगर बात करें इनके वर्क की, तो इनका सबसे फेमस एक ही वर्क है that I have included, that is Goblin Market. Goblin Market 1862. It was a narrative poem which explored the themes of temptation and salvation. इसके बाद आते हैं गेरार्ड मैनले हॉपकिंस, और जिन्हें हम G.M. हॉपकिंस के नाम से भी जानते हैं। इनके कुछ 5 इंपॉर्टेंट वर्क थे, मैंने सभी को इंक्लूड किया है। The first one is The Wreck of the Deutschland. Then Pied Beauty. Pied Beauty इनका एक sonnet है which celebrated the beauty of God's creation, embracing imperfections and diversity. Then we have God's Grandeur. It was another sonnet.
Then The Windhover, it is a poem that described the beauty and grace of a kestrel in flight, expressed admiration for the divine presence in nature. अगर आप जीएम हॉपकिंस के वर्क्स देखें तो वो अधिकतर गॉड नेचर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. फिर है Spring and Fall 1880. It was a short poem which captured the emotional response of a child to the changing colors of autumn leaves and reflected on the inevitability of mortality. चलिए अब हम जीएम हॉपकिंस के वर्क्स को याद करने की कोशिश करते हैं. जीएम हॉपकिंस अगर हम देखें तो जीएम हॉपकिंस के ऊपर गॉड का ग्रैंड्योर हो गया, तो गॉड्स ग्रैंड्योर. अब जब भगवान का ग्रैंड्योर हुआ तो क्या हुआ, स्प्रिंग एंड फॉल आया. सो द स्प्रिंग एंड फॉल जब आया तो हवाएं चलने लगी, सो द विंड होवर. और जब हवाएं चलने लगी, स्प्रिंग एंड फॉल आया, तो इन सब की वजह से चारों तरफ एक पाइड ब्यूटी आ गई. पाइड का मतलब होता है काफी सारे कलर्स का एक मिक्स. तो सुंदर सुंदर तरीके की ब्यूटी चारों तरफ बिखर गई. तो जीएम हॉपकिंस, जी से गेराल्ड एंड जी से गॉड्स ग्रैंड्योर. सो जीएम हॉपकिंस रोड गॉड्स ग्रैंड्योर, जिसकी वजह से स्प्रिंग एंड फॉल आया, जिसकी वजह से हवाएं चली, द विंड होवर, एंड चारों तरफ ब्यूटी हो गई. सो पाइड ब्यूटी. द wreck ऑफ द ड्यूट्स लैंड आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, वैसे भी ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है. Then we have Matthew Arnold. ये एक prominent Victorian poet थे, एक critic थे, and he was also a cultural commentator. अगर हम बात करें इनके वर्क्स की, सो सबसे पहले है पोएम्स 1853. ये एक कलेक्शन था जिसमें इनके जो शुरुआती वर्क्स हैं वो सारे इसमें कलेक्ट किए गए थे, एंड उनको पढ़ के हमें पता चलता है कि एज अ पोएट वो कैसे इवॉल्व होते हैं, एज अ पोएट उनका कैसे डेवलपमेंट होता है. इसके बाद अगर हम बात करें उनके क्रिटिकल प्रोज की, तो सबसे पहले है एसेज इन क्रिटिसिज्म. एसेज इन क्रिटिसिज्म, कंफ्यूज नहीं होना है. ये अर्नोल्ड का एक कलेक्शन था क्रिटिकल एसेज का, जो लिटरेचर और कल्चर पर उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो हमें बताता है. फिर है कल्चर एंड एनार्की. ये इनका सबसे इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में से एक था. इट डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर and its role in the society. Then we have Literature and Dogma. Literature and Dogma was a theological work which examined the tensions between religion and modernity. इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्यू अर्नोल्ड के पोएट्री कलेक्शंस की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड जो आपको नोट डाउन भी करना है, इट इज थायरसिस. थायरसिस एक पेस्टोरल एलिजी थी जो उनके फ्रेंड अर्थर हकलफ को डेडिकेटेड थी. देखिए इंग्लिश लिटरेचर में एलिजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अक्सर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये एलिजी किसको डेडिकेट की गई थी, तो आपको ना सिर्फ एलिजी के राइटर के बारे में पता होना चाहिए, बट देन यू शुड ऑल्सो नो दैट टू whom it was dedicated. So this was all about Matthew Arnold. अब आते हैं इस टाइम पीरियड के नॉवेलिस्ट्स, जिसमें सबसे फर्स्ट एंड सबसे फेमस हैं चार्ल्स डिकेंस. ही वॉज अ रिनोन्ड इंग्लिश पोएट एंड सोशल क्रिटिक. इनके वर्क्स को उनके विविड कैरेक्टर्स, उनके प्लॉट्स और वो जो सोशल इश्यूज का एक्सप्लोरेशन करते हैं अपने वर्क्स में, उसके लिए इनको जाना जाता है. मैंने इनके सारे वर्क्स को लाइन से लगाया है बिकॉज चार्ल्स डिकेंस पर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, ना सिर्फ पीजी में बल्कि नेट एग्जाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस उनकी क्रोनोलॉजी से पूछा जाता है. तो इनके मैंने सारे वर्क्स इंक्लूड किए हैं एंड आपको भी सारे याद करना है. ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट. अभी मैं नाम बोलूंगी फिर हम इन्हें याद करेंगे. निकोलस निकलबी, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, क्रिसमस कैरल, Dombey and Son, David Copperfield, Bleak House, Hard Times, Little Dorrit, and A Tale of Two Cities. So now we will just try to remember his works. सबसे पहले चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस के घर के सामने एक पेपर का शॉप था, पिकविक पेपर, ठीक है. वो जो पेपर का शॉप था वहां कुछ बच्चे पेपर पिक करने का काम करते थे.
तो ये दो बच्चे थे, ओलिवर ट्विस्ट एंड निकोलस निकलबी। अब ये जो पिकविक पेपर्स का काम कर रहे हैं, तो पेपर पिक करके ये जाते हैं पेपर्स को बेचने, आप रद्दी बेचने जाते हैं ना, सो ऐसे ही दे यूज टू सेल दोस पिकविक पेपर्स। और ये कहाँ पर करते थे? ये ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में। अब जब ये यहाँ पर जाते हैं बेचने के लिए, तो इनको कुछ पैसे मिलते हैं, उन पैसों को ये इकट्ठा करते हैं अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो आता है अ क्रिसमस कैरल। अब क्रिसमस कैरल तो आ गया, पर इनके पास पैसे नहीं इकट्ठे हो पाए, तो ये मदद मांगने जाते हैं। सबसे पहले ये जाते हैं डॉम्बी एंड सन के पास, जो इन्हें पैसे देने से मना कर देते हैं। देन दे गो टू डेविड कॉपरफील्ड, जो कि ब्लीक हाउस में रहते थे। वहां ये बताते हैं कि हम बहुत ही हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, हमको पैसे दे दीजिए, पर ये भी इनकी मदद नहीं करते हैं। फिर इन्हें मिलते हैं लिटिल डॉरेट इनको पैसे देते हैं और ये घूमने चले जाते हैं टू सिटीज। ये दो सिटीज कौन सी थी? लंदन एंड पेरिस। लिटिल डॉरेट की मदद से ये लंदन एंड पेरिस घूमने चले जाते हैं। चलिए अब रिवाइंड करते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस का जो घर था उसके सामने दो बच्चे पेपर पिक करते थे। सो द पिकविक पेपर, वो दो बच्चे कौन से थे? ओलिवर ट्विस्ट एंड निकोलस निकलबी। अब ये पेपर इकट्ठे करके बेचने कहाँ पर जाते थे? इन दी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप से जो पैसे मिले उसे ये लोग जोड़ रहे थे क्रिसमस कैरल के लिए। अब क्रिसमस कैरल तो आ गया, बट पैसे नहीं है। सो देन दे वेंट टू डॉम्बी एंड सन फॉर दी हेल्प, बट दे डिनाइड। देन दे वेंट टू डेविड कॉपरफील्ड, जो कि ब्लीक हाउस में रहते थे। उन्हें ये बताते हैं कि हम हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, सर प्लीज हेल्प अस, बट वो भी इनकी मदद नहीं करते हैं। सो देन लिटिल डॉरेट से ये मिलते हैं, लिटिल डॉरेट इनकी मदद करते हैं, इनकी मदद से घूमने जाते हैं लंदन एंड पेरिस। सो इट वाज ऑल चार्ल्स डिकेंस। अब इनके दो वर्क्स को मैंने अलग से रखा है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड आवर म्यूचुअल फ्रेंड। स्टोरी में फिट नहीं बैठ रहे थे, बट आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ पिप एंड हिज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इस पर एक मूवी भी बनी है, आदित्य रॉय कपूर एंड कैटरीना कैफ की फितूर। यू कैन वॉच इट फॉर द रेफरेंस। एंड आवर म्यूचुअल फ्रेंड, ये मटेरियलिज्म एंड सोसाइटल करप्शन की बात करता है। अब आती है जॉर्ज एलियट। अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉर्ज एलियट जो है ये किसका पेन नेम था, है ना? तो आपको याद रखना है दैट इट वाज द पेन नेम ऑफ मिस मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस का पेन नेम था जॉर्ज एलियट। शी वाज अ प्रोमिनेंट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। इनका सबसे फेमस चार वर्क्स मैंने इंक्लूड किया है। फर्स्ट वन इज द मिल ऑन द फ्लॉस। देखो, एम से मिल है एंड एम से मैगी है, इसके कैरेक्टर्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो द मिल ऑन द फ्लॉस मैगी टिलीवर की कहानी है, ये आपको याद रखना है। टॉम एंड मैगी टिलीवर की, जिसमें मैगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है साइलस मार्नर एंड रोमोला, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मिडल मार्च। तो जॉर्ज एलियट की एक फ्रेंड थी एडम बीड। एडम बीड रहती थी मिल ऑन दी फ्लॉस में। मिल ऑन दी फ्लॉस में उनके दो और दोस्त थे, साइलस मार्नर एंड रोमोला, जो कि मिडिल में रहा करते थे। सो मिडिल मार्च। एडम बीड इलियट का डेब्यूट नॉवल था एंड इट एक्सप्लोर्ड द थीम्स ऑफ लव एंड बीट्रेयल एंड दैट टू इन द रूरल सेटिंग्स। अब आती हैं ब्रॉन्टे सिस्टर्स। ब्रॉन्टे सिस्टर्स हम जानते हैं तीन थी, चार्लोट ब्रॉन्ट, एमिली ब्रॉन्ट एंड एनी ब्रॉन्ट। ये 19th सेंचुरी की इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी। इन्होंने कुछ ही वर्क्स लिखे हैं, बट दे आर सो सिग्निफिकेंट कि उनको आज भी वाइडली रीड किया जाता है। सबसे पहले आती हैं चार्लोट ब्रॉन्ट, हु इज नोन फॉर हर मास्टरपीस जेन आयर। ये इनका सबसे फेमस वर्क था। इट वॉज अ गॉथिक नॉवल दैट एक्सप्लोर्ड द थीम्स ऑफ मोरालिटी, सोशल क्लास एंड लव। जेन एयर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जेन एयर। फिर है एमिली ब्रॉन्ट, जो कि वुदरिंग हाइट्स के लिए जानी जाती हैं। ये इनका ओनली नॉवल था। इट वॉज ऑल्सो अ डार्क एंड पैशनेट टेल ऑफ लव एंड रिवेंज विच वॉज सेट इन द यॉर्कशायर मोर्स। अब आती हैं एनी ब्रॉन्ट। ए से एनी, ए से एग्नेस ग्रे। जब मैंने एग्जाम दिया था अपने एमए एंट्रेंस का,
फॉर DU तो उसमें ये क्वेश्चन आया था दैट हु हैज रिटन एग्नेस ग्रे. So it is Annie Bronte. ये इनका फर्स्ट नॉवल था. It was a semi-autobiographical work that portrayed the life of a governess. Apart from Agnes Grey, इनका फेमस वर्क है The Tenant of the Wildfell Hall. अब जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं इन्होंने कुछ मेल स्यूडोनिम्स यूज किए थे. चार्लोट ने करर बेल, एमिली ने एलिस बेल एंड एनी ने एक्टन बेल. तो ये थी हमारी तीन ब्रॉन्टे सिस्टर्स विच वर वेरी फेमस. अब आते हैं थॉमस हार्डी. मैं ये वीडियो हटा देती हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी वेरी क्लियरली. अब आते हैं थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी भी चार्ल्स डिकेंस की ही तरह इस टाइम पीरियड के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स थे. ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे एंड पोएट थे हु इज नोन फॉर हिज नॉवेल्स सेट इन रूरल वेसेक्स. जैसे हमारे इंडिया में आर के नारायण जी ने मालगुडी को बनाया है एक फिक्शनल टाउन, ऐसे ही थॉमस हार्डी भी जाने जाते हैं वेसेक्स नॉवेल्स के लिए. सबसे पहला इनका फेमस वर्क है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. This novel explored the themes of love and choices which were centered around the independent Bathsheba Everdeen and her three suitors. फिर है The Return of the Native. Return of the Native एक tragic novel है. Then comes The Mayor of Casterbridge. Mayor of Casterbridge I am sure आप में से कई लोगों के सिलेबस में भी होगा BA के. ये मेरे भी सिलेबस में था and it is also very important work. Mayor of Casterbridge बल्कि इनका सबसे important works में से एक है. फिर है Tess of the Uvervilles. It is a tragic tale of Tess, who is a young woman who experiences hardship and tragedy due to her social status. मैंने आपको बताया था इस टाइम पीरियड के वर्क्स poverty and societal issues से डील करते हैं, तो उन्हीं में से कुछ एक वर्क है टेस. फिर है Jude the Obscure. It is a novel which explored the challenges faced by the protagonist जिसका नाम रहता है Jude. अब आती है Wessex poems. हार्डी का जो कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ पोएम्स इट कैप्चर्ड द ब्यूटी एंड हार्शनेस ऑफ रूरल लाइफ इन वेसेक्स. वेसेक्स एक टाउन था विच वाज क्रिएटेड बाय मिस्टर हार्डी. इनके वर्क्स को उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर के लिए जाना जाता है. ये अपने वर्क्स के द्वारा इंसान अपने मन में वो जो बातें रखता है जो वो शायद कभी खुद से भी नहीं कहता है, उन सारी चीजों को ये अपने वर्क्स में बताते थे जिनके लिए इनको जाना जाता है. अब आते हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. ये एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट पोएट एंड एसेइस्ट थे जिन्हें इनके एडवेंचरस एंड इमेजिनेटिव राइटिंग के लिए जाना जाता है. अगर हम बात करें इनकी नोटेबल वर्क्स की तो सबसे पहला है ट्रेजर आइलैंड. ट्रेजर आइलैंड एक क्लासिक एडवेंचर है. It tells the story of young Jim Hawkins and his journey to find buried treasure with the help of a pirate map. Then we have Kidnapped. It is another adventure novel and this time set in Scotland. It follows the protagonist David Balfour as he survives shipwrecks and encounters betrayal and faces various challenges. तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन से आपको याद रखना है that he is very very famous for his adventurous works, for his adventurous tales that he has told through his works. चलिए इसके बाद आते हैं लीविस कैरोल. लीविस कैरोल who was born at Charles Litwich Dawson. He is he is a person जिन्होंने मैरी एन इवांस की तरह जैसे उन्होंने जॉर्ज इलियट नाम यूज किया था ऐसे ही चार्ल्स भी लीविस कैरोल यूज करते हैं अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए. इन्हें जाना जाता है इनके मास्टरपीस एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के लिए. एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड जो है वो एलिस के एडवेंचर्स की बात करता है और फिर ये उसी का एक सीक्वल लिखते हैं थ्रू दी लुकिंग ग्लास एंड व्हाट एलिस फाउंड देयर इन 1871. ये एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड का ही एक सीक्वल था जो एलिस की जर्नी जहां पर वो एंड करते हैं फिर उस जर्नी को कंटिन्यू किया जाता है इस वर्क में. देन वी हैव सर अर्थर कैनन डॉयल and I'm sure you must have seen his
work like Sherlock Holmes series. It is available on Amazon Prime, I guess. आपको मिल जाएगा, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगी आप Sherlock Holmes इनके वर्क्स पर जो सीरीज बनी है वो आप जरूर देखें. उसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं, ही हैज डन फैंटास्टिक वर्क. उन्होंने बहुत ही फिनोमिनल काम किया है एज मिस्टर शेरलॉक होम्स. तो आप जरूर देखें उसको. ठीक है, चलिए अब अभी का जो क्लास है विक्टोरियन एज, इट एंड्स हियर. नाउ आई विल बी टेलिंग यू द 5 क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which novel by Charlotte Bronte explores themes of social class, love, and morality in Victorian England? It is Pride and Prejudice, Jane Eyre, Wuthering Heights, or Middlemarch. Question number second says, what cultural movement emphasizing medieval inspired architecture and art emerged during the Victorian age? Question number third says, which iconic detective character created by Sir Arthur Conan Doyle became a symbol of the detective fiction genre during the Victorian age? Question number four says, what literary movement characterized by an emphasis on portraying everyday life and social issues gained prominence in Victorian England? So, this is the first question, then this is the second one, third, fourth. Okay, fourth question is, who authored the novel Middlemarch, a multi layered exploration of social and political issues in provincial Victorian England? Then we have this question number fifth. So this was all about today. I hope that आपको मैंने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी इशू है, क्वेरी है, और there is something you want to have a class on, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं. Last but not the least, I would just like to say that all this takes a lot of time and efforts. So please do not go without leaving your feedback in the comment section. Your valuable feedback means a lot to me. So do subscribe to the channel, like the video if you found it helpful, and do provide your feedback in the comment section. Also, if you know someone who is preparing for CUET PG English Literature, then do share the lectures with him or her as well. We will soon meet in our next class. Till then, goodbye.